Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make. Hello guys, I hope you are doing all well, and you are already seeing that I have written one unit from class 11, that is from class 11, from the first part, that is chemical bonding and molecular structure. So it is it's a very you can say it's a very important unit from class 11, where you will see uh, some particular structure of whether actually the compound or the molecule have a structure from this unit, and also what are the bondings are responsible for any molecules. Okay, and also in case of chemical bonding and molecular structure, you will see that how the molecule is forming, and we all know that we are all studied from our lower classes that how a molecule is formed, because you generally have to deal with molecules in this structure. ठीक है, तो molecules में क्या क्या तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, so उसका bonding कैसे होंगे, molecules में तुम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, their bondings, the main thing, the bonding, what are the bondings will be, how the, if any compound, if any molecule is there, what type of bonding will be there in this particular molecule. Then they are particularly there you have to see the some concept that how the atoms combine, क्योंकि एटम्स कंबाइन होने से क्या होता है, हम लोग को क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं. ठीक है, ये हम लोग from our lower classes we have studied that two or more atoms or two atoms combine to form a molecule. Okay, so for that, what will be the actual structure of this molecule, but we don't have studied in our lower classes that what will be the structure of any molecule. तो एक molecule का अगर structure भी हम लोग depict कर पाएंगे, तो उससे भी हम लोग उसका polarity निकाल सकते हैं या non polarity निकाल सकते हैं. Then many such factors we can bring out, no. So basically in this chapter you will get to know that what will be the structure of any molecule when atoms combine. So atoms combination करने से क्या होता है, generally हम लोग को molecules मिलते हैं. Then what we have to study in this particular chapter, that how do atoms combine, you have to study what are the bonding, what type of bonding is there in case of forming a molecule. ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बनते हैं बट नॉट H3. कोई ऐसा मोलिक्यूल ही नहीं है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ट्राइएटमिक स्टेट में रहे, मतलब एग्जिस्ट करे. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को हाइड्रोजन मोलिक्यूल मिलते हैं एज H2. वाई नॉट H3? So these are some concept you have to study in this chapter. Next, you have to study about that generally the two hydrogens combine to form H2, but generally दो हाइड्रोजन मिलके H2 बनता है, but three hydrogens cannot combine. What about some other cases like helium? हीलियम एक क्या होता है, हीलियम एक ग्रुप 18 का एलिमेंट है. तो जो भी ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है जनरली दे रिमेन्स इन एलिमेंटल स्टेट बट नॉट, वाई नॉट He2? ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है. तुम लोग इस चैप्टर में तुम लोग को पढ़ने को मिलेंगे कि हीलियम एग्जिस्ट एज ए एलिमेंटल स्टेट और यू कैन से इन ए नेटिव स्टेट but not in a combined state as existing as a similar atomic state. मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि एक ही एलिमेंट का combined state में रहना, जैसे He2 या नाइट्रोजन बोल सकते हो N2. So this, why not He2? Why only the helium? If two hydrogen can combine to form H2 but not H3. So these are some concept, little concept you have to study, and some structures. मैंने कुछ देर आगे बोला कि हम लोग इस चैप्टर में मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. मोलिकुल का स्ट्रक्चर्स, बहुत सारा मोलिकुल का स्ट्रक्चर्स तुम लोग को देखने को मिलेंगे. ठीक है, एक चार्ट दूंगा मैं, उस चार्ट में हम लोग को उस चीज़ को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है लीनियर, बट वाटर इज वी शेप. Carbon dioxide is linear but water is a V shape. Why it is so? And what about the BF3? So that is boron trifluoride is trigonal pyramidal. ठीक है, so BF3 is trigonal pyramidal and but N भी लिख सकते हो या but, and NH3 sodium that is ammonia is trigonal planar. ठीक है, so BF3 is
your sorry, I think I did a mistake here. So BF3 is trigonal planar. You can also say it is a planar molecule, and NH3 is trigonal pyramidal. I'm sorry for that. तो यहाँ पे हम लोग इस दिस आर सम कॉन्सेप्ट यू हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और भी बहुत चीज़ पढ़ना है, बट एक बोलते हैं ना कि उस चैप्टर को, उस यूनिट को पढ़ने के आगे हम लोग को एक बार वो समरी चेक करना चाहिए कि क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग मोलिकुल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोलिकुल कैसे बनते हैं. जनरली 2 और मोर एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो जनरली क्या बनते हैं, मोलिकुल्स बनते हैं. एक सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, एक डेफिनेशंस मैंने दिया. ऐसा नहीं कि यही मेरा पर्टिकुलर डेफिनेशन है, मुझे यही लिखना है. और व्हाट इज मोलिकुल ये कभी पूछेंगे भी नहीं इन क्लास 11. यू डोंट एक्सपेक्ट लाइक दिस वे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क इन क्लास 11 पर्टिकुलरली. छोटे क्लास में होते थे तब अलग बात थी, वहाँ पे व्हाट इज एटम भी पूछा जाता था, बट अभी एक्सपेक्ट ही मत करो ये सब. तो जनरली बट हम लोग को कॉन्सेप्ट तो जानना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत कुछ देंगे हम लोग इन वट एवर द अपकमिंग थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. द कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग. कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना ही है. सो एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि हम लोग अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर एटम कंबाइन होते हैं तो वो हम लोग को प्रोडक्ट, जो हम लोग को कंबाइन होने के बाद जो मिलेंगे, दिस आर द कॉल मॉलिक्यूल्स. और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन, सॉरी एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या बॉन्डिंग, उसमें क्या क्या बॉन्डिंग अराइज हो सकते हैं. सो व्हाट आर द बॉन्डिंग्स विल बी अराइज्ड व्हेन दे विल फॉर्म, व्हेन दे विल कंबाइन विद ईच अदर. नेक्स्ट, हाउ डू एटम्स कंबाइन. एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं, वाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन होते हैं, या हाउ द एटम्स कंबाइन बोल सकते हो. तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि वाई डू एटम्स कंबाइन, वाई एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन आते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं. इसके बाद हाइड्रोजन, 2 और मोर, 2 हाइड्रोजन मिलके H2 होते हैं, बट 3 हाइड्रोजन मिलके H3 नहीं बनता है. वाई. सो दीज आर सम कंडीशंस और दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन ए डिटेल मैनर. मैं बार बार बोल रहा हूँ, हीलियम फॉर्म होते बट नॉट He2. कोई भी ग्रुप 18 एलिमेंट का कोई भी डायएटॉमिक स्टेट में मिला नहीं जाता है. ओनली दे एग्जिस्ट इन अ नेटिव स्टेट, और यू कैन सिंपली से दैट दे एग्जिस्ट इन ए एलिमेंटल स्टेट. देन स्ट्रक्चर्स देखो, कोई लीनियर होते हैं, कोई वी शेप होते हैं, कोई ट्रायगोनल प्लानर बनते हैं, कोई होते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल. वाई this some peculiarity it happens with the molecules, why we obtain some different structures in this particular with a particular molecules. सबका अलग अलग एक टेंडेंसी होते हैं. ठीक है. तो जनरली जो ओरिएंटेशंस होते हैं इन स्पेस, सो जनरली उस स्टेट में या उस ओरिएंटेशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो लोग का एग्जिस्टेंस ऐसे ही होते हैं. और इसको एनालिसिस, इसको हम लोग अगर कंफर्म करते हैं through some analysis like X-ray analysis also you can determine the structure of any molecule. So वहाँ से भी तुम निकाल सकते हो कोई भी अननोन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. चाहिए वो आइदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन नहीं होंगे. So these are some different things we have to study in detail afterwards, but things which you have to study in this particular chapter. So these are some summary in this chapter we have to study in a detail. बट हियर इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट. ओके. हम लोग को और भी चीज़ जानना है. ठीक है. तो गाइस, तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आया थोड़ा बहुत. तो आज हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है. तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी. तो जनरली ये सब जो मैंने रीज़न अभी तुम लोग को साइड किया था, तो इस रीज़न से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि कैसे इसको ओवरकम करें. सो फॉर टू ओवरकम दिस क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस व्हिच इज अराइज्ड इन दिस चैप्टर, सो दिस क्वेश्चंस को, दिस सम ऑफ द क्वेश्चंस इज बीन सॉल्व्ड बाय सम अप्रोचेस, बाय सम अप्रोच. तो ये जनरली कोई साइंटिस्ट ने अप्रोच किया इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए, या फिर कुछ थ्योरी लाया हम लोग ने, उस थ्योरी से भी हम लोग उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया. So there are some 4 approaches you can say from, or you can say 4 different theories
ओके, सो देयर आर 4 डिफरेंट थ्योरीज। सो 4 डिफरेंट थ्योरी से जो क्वेश्चंस अभी अराइज हुआ, हम लोग ने कुछ देर आगे ही देखा, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो जनरली टाइम टू टाइम लॉ एस्टेब्लिश होता रहा। एक तो हो गया कोसेल लुइस अप्रोच। इसके बाद टाइम बिंग इट हैज़ बीन आफ्टर कोसेल लुइस इट हैज़ कम VSEPR थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यू कैन से। ओके, देन द अदर कॉन्सेप्ट केम दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज VBT थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद आया द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, and you have to see all those theory in a detailed manner में तुमको पढ़ना है। ठीक है, जब ये सब टॉपिक्स या ये सब थ्योरी जब पढ़ लोगे, जब कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हो जाएंगे, तब देखना कोई भी कंपाउंड हो, अननोन कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो पटक से तुम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, इससे तुम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। विल गो ऑन डिस्कसिंग आफ्टरवर्ड्स। सो यहाँ पे एंड ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। कैसे हेल्पफुल हो गए ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये चैप्टर बहुत मायने रखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री, यू कैन से। अदर चैप्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज दैट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 4 डिफरेंट थ्योरीज है, हम लोग को कोई भी जो सवाल आया हम लोग को, पहले हम लोग ने इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने के बाद ही, तुरंत बाद ही हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हुआ। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग ये सब अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, विल डिस्कस वन बाय वन। तो जनरली जो हम लोग का फर्स्ट अप्रोच देख रहे हैं, दैट इज कोसेल लुइस अप्रोच। ठीक है, ये शायद तुम लोग को पहले कभी तुम लोग को सुनाने में नहीं दिया। एंड लुइस ना, तो लुइस का बहुत क्या बोलते हैं उसको, लुइस बहुत कुछ देके गया हम लोगों को। ठीक है, लुइस एसिड्स, लुइस बेसिस, उसका बहुत सारा थ्योरीज है, मतलब ठीक है, थ्योरीज मतलब उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को प्रोवाइड करके गया है, जिससे हम लोग कोई भी जनरली बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं इन कार्बोनाइज कंपाउंड। उसमें हम लोग ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, तो उसका जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जनरली लुइस ने दिया है, मतलब तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ है, कोसेल एंड लुइस अप्रोच, दोनों इंडिपेंडेंटली काम किया है, बट दोनों अप्रोच में ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जनरली एक चीज़ हम लोग को देते हैं कि इस थ्योरी में जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आया है। ये जो थ्योरी है ना, तो इस थ्योरी और कोसेल लुइस थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या आया, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी was based on electronic concept of atom. So this theory was based on the electronic configuration of electronic concept of atom. So generally इसको कभी कभार क्या बोला जाता है, so it is also called as, इसको कभी कभार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, is called as इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को हम लोग इस अप्रोच ने ये चीज़ बताया कि जे जनरली गेव द थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटॉम। तो जो एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ही दिया है, मतलब सो जनरली इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट है, सपोज ए है, सपोज मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी 118 एलिमेंट से कोई भी एक एलिमेंट मैंने चूज़ किया,
ऐसा ए बोल के कोई एलिमेंट नहीं है. सपोज मैंने ए एक एलिमेंट लिया, सपोज इट कैन कंबाइन विद द थ्री एलिमेंट्स. इसके बाद उसका कैपेबिलिटी नहीं है कि और भी बॉन्ड बने उसका बॉन्ड और भी बन सकता है यहाँ पे. इट हैज़ ओनली मैक्सिमम कैपेसिटी, इट कैन फॉर्म अ 3 बॉन्ड. तब उसका वैलेंसी हम लोग कितना बोलेंगे? सो वैलेंसी इसका बोलेंगे हम लोग 3 बोलेंगे. मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी इस एलिमेंट का कितना है? सिर्फ 3 है. मतलब इट कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स, सो इट्स वैलेंसी इज 3. सो इट्स अ वेरी व्हाट टू से, इट्स अ वेरी हम लोग जब हम लोग क्लास 8-9 से हम लोग ने स्टार्ट किया केमिस्ट्री को पढ़ना, तब से हम लोग को ये सब वैलेंसी, outer most electron, and in class 10 we have studied in detail in carbon and its compound. So don't have to study again in detail what is valency. Again you have to learn you have started learning what is valency. Yes, you can check the concept from your lower classes, but you don't have to study again and again because already you have studied. But पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कोसल-लुईस जो अप्रोच होंगे ये जनरली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटॉम. That is called, which is also called or also referred as electronic theory of valency. तो इस जनरली यहाँ पे जनरली जो कोसल है, ये कोसल इसका लिमिटेड जो स्टडी किया है, जनरली इसका जो अप्रोच है या फिर इसका जो मतलब स्टडी होते हैं ना कि किसी किसी का फंडामेंटली कुछ रिसर्च होते हैं. कोई ऐसा पर्सन नहीं है या कोई ऐसा एकेडमिशियन नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च स्कॉलर नहीं है जो पूरा फील्ड में काम कर सकता है. एक फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे. तो यहाँ पे देखा गया कि कोसल ज़्यादातर क्या क्या लिमिटेड टू ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लिमिटेड टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये सब चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये कंसेप्ट है. तुमको याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो. अगर सोचते हो कि नहीं मुझे और जानना है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को नॉलेज मिले. और लुईस हम लोग सभी जानते हैं, ये हम लोग का कार्बन अनिस कंपाउंड में था. हम लोग ने देखा भी था कि हम लोग ने क्लास 10 में ये सब पढ़ा भी था कि लुईस कॉन्सेप्ट जनरली कार्बन कंपाउंड के ऊपर ही दिया. मतलब इट जनरली स्टडीड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो दोनों में अंतर है कि नहीं? इसने सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर स्टडी किया और लुईस ने ज़्यादातर स्टडी किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर. तो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि लुईस ने ज़्यादा फोकस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली के ऊपर और इसने ज़्यादातर फोकस किया किसके ऊपर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर. ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कोसल और लुईस ने किसके ऊपर काम किया. बस जानना है उस चीज़ को, क्योंकि आप लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे तो हम लोग को जानना भी है थोड़ा थोड़ा चीज़ को कि ये लोग ने काम भी कैसे किया था. तो काम करने का तरीका सबका अलग अलग है, बट ये लोग इंडिपेंडेंटली काम किया किंतु, ठीक है. बट जनरली दोनों का अप्रोच क्या है? दोनों का अप्रोच सेम ही था. दोनों में ही अप्रोच क्या था? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. बट जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आएंगे, मैं थोड़ा देर बाद डिस्कस कर रहा हूँ, जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, वो थ्योरी जनरली कौन दिया है? लुईस दिया है. मतलब हम लोग कभी कभार इसको लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट अप्रोच भी बोलते हैं. विल सी आफ्टरवर्ड्स कि कोई भी अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर रिप्रेजेंट करना है, दैट इज गिवन बाय लुईस. Let's see what are the particular things we have to study in detail manner. Deep in the shadows, I know it's hard.